ہائی کورٹ میں اسموک سے تدارک کے لیے درخواست پر سماعت کا یہ معاملہ ہے۔ عدالت نے حکومت کو ماحولیاتی سفیر مقرر کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ عید تک بیکریوں کو رات 1 بجے تک کام کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ جوہر ٹاؤن میں شاپنگ مال کے ارد گرد غیر قانونی پارکنگ فوری سیل کرنے کا حکم ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے شہر میں جگہ جگہ انڈر پاسز بنانے پر برہمی کا اظہار کیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ موجود ہیں محمد اشفاق جی۔ محمد اشفاق، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے اسموک کے تدارک کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی، تو اس حوالے سے عدالت نے حکومت کو ماحولیاتی سفیر مقرر کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جبکہ دوران سماعت لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے جگہ جگہ انڈر پاسز بنانے پر برہمی کا اظہار کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارک دیے کہ اگر ان سڑکوں کو کی ریماڈلنگ کر دی جائے تو انڈر پاسز کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ٹریفک کی روانی بھی بہتر ہوگی۔ عدالت نے جو ٹریفک پولیس ہے اس سے متعلق ریمارک دیے کہ ٹریفک پولیس کو مزید امپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا میں ٹریفک پولیس کے پاس بے شمار اختیارات ہیں، لیکن یہاں پر اس طرح سے اختیارات نہیں دیے گئے۔ عدالت نے اس حوالے سے آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر دی۔ ٹھیک ہے، رپورٹ طلب کر لی ہے، بہت شکریہ اشفاق۔ پی ٹی آئی کارکن علی بلال عرف ذلے شاہ کی ہلاکت کا معاملہ۔ سیشن عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنما کی عبوری ضمانت میں 13 اپریل تک توسیع کر دی ہے۔ عدالت نے فاروق حبیب اور فواد چودھری کی 1 روز کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی ہے۔ اس بارے رپورٹ کریں گے نعمان نور۔ پی ٹی آئی کارکن علی بلال اور ذلے شاہ کی ہلاکت کا معاملہ۔ ایڈیشنل سیشن جج محمد بلال بیگ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید اور دیگر پی ٹی آئی رہنما عدالت پیش ہوئے اور حاضری مکمل کروائی۔ فاروق حبیب اور فواد چودھری عدالت پیش نہ ہوئے۔ وکیل رانا مدثر نے دونوں رہنماؤں کی حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔ عدالت نے 1 روز کی حاضری معافی منظور کر لی۔ تفتیشی افسر کی رپورٹ کے مطابق سڑک کے درمیان چلتے علی بلال کو تیز رفتار ڈالے نے ٹکر ماری۔ ملزمان علی بلال کو زخمی حالت میں سروسز ہسپتال لائے۔ ملزمان علی بلال کی موت کی اطلاع ملتے ہی ہسپتال سے فرار ہو گئے اور زمان پارک گئے۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر نے حقائق کو چھپایا۔ ملزمان کے وکلاء نے دلائل دیے کہ ملزمان شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، تاہم ڈر ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی۔ ملزمان کے خلاف بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے۔ عدالت سے عبوری ضمانتیں منظور کرنے کی استدعا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری ضمانت میں 13 اپریل تک توسیع کا حکم دے دیا۔ کیمرہ مین فیصل رحمان کے ساتھ نعمان نور، لاہور نیوز۔ آپ کو بتائیں کہ سابق ایم پی اے علی افضل صاحی کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کا یہ معاملہ ہے۔ ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت 12:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سابق ایم پی اے علی افضل صاحی کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہے۔ ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت 12:30 بجے تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو دلائل کے لیے طلب کر لیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ سابق ایم پی اے علی افضل صاحی کی ممکنہ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم کے بھانجے حسان نیازی کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ عدالت نے پولیس کو حسان نیازی کی گرفتاری سے 8 اپریل تک روک دیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے بھی حسان نیازی کی عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ آج ہونے والے سماعت کے بارے میں بتائیں کہ نعمان نور جی۔ نعمان جی، سیشن عدالت نے جو ہے وہ سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں سابق وزیر اعظم کے بھانجے حسان نیازی کی عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے، اور عدالت نے پولیس کو حسان نیازی کی گرفتاری سے 8 اپریل تک روک دیا ہے۔ ملزم حسان نیازی کے خلاف تھانہ ریس کورس میں مقدمہ 286 جو ہے وہ درج کیا گیا تھا، جس میں یہ پولیس نے حسان نیازی کے خلاف الزام عائد کیا کہ حسان نیازی نے سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کی، کار سرکار میں مداخلت کی، پولیس والوں سے لڑائی جھگڑا کیا، جبکہ اس حوالے سے عدالت نے حسان نیازی نے عبوری ضمانت دائر کی کہ ڈر ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی، میں شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں اور خود کو بے قصور ثابت کرنا چاہتا ہوں، جس پر عدالت نے دلائل سننے کے بعد حسان نیازی کی عبوری ضمانت جو ہے وہ 8 اپریل تک منظور کر لی ہے، جس کے بعد حسان نیازی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش ہوا، جس پر انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے حسان نیازی کی عبوری ضمانت 7 اپریل تک منظور کر لی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے کیس پر سماعت کی۔ حسان نیازی کی جانب سے ان کے وکیل صدر لاہور بار رانا انتظار نے دلائل مکمل کیے اور عدالت میں موقف اپنایا کہ حسان نیازی ایک وکیل ہے اور قانون کی پاسداری کرنے والا شہری ہے، لیکن
पुलिस की जानब से इसके खिलाफ झूठे सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। इमरान खान का भांजा होने की वजह से हसन न्याजी को मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस किया जा रहा है। अदालत से इस्तदा है कि अदालत हसन न्याजी की अबूरी जमानत मंजूर करे और हम शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं ताकि हम खुद को बेकसूर साबित कर सकें, जिस पर अदालत ने हसन न्याजी की अबूरी जमानत 7 अप्रैल तक मंजूर कर ली। बहुत शुक्रिया नुमान इस तफसील की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर MPAs एंटी करप्शन के शिकंजे में आ गए हैं। साबिक सूबाई वज़ीर हाफिज़ मुमताज़ अहमद ख्याल अहमद कासरू के खिलाफ मज़ीद तहकीकात का आगाज़ हो चुका है। साबिक सूबाई वज़ीर ख्याल अहमद कासरू, साबिक MPA मलिक उमर फ़ारूक शकील शाहिद को 3 अप्रैल को पेश होने की हिदायत है। इसी पर बात करेंगे शबीर हैदर से। जी शबीर, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर और साबिक MPA एंटी करप्शन के शिकंजे में आ गए हैं। जिनमें बात की जाए तो साबिक सूबाई वजीर हाफिज़ मुमताज़ अहमद ख्याल अहमद कासरो के खिलाफ मजीद तहकीकात का आगाज़ किया गया और इन्हीं के साथ साबिक MPAs मोहम्मद लतीफ़ नज़र, मलिक उमर फ़ारूक, शकील शाहिद के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। और इनमें साबिक सूबाई वजीर हाफिज़ मुमताज़ अहमद पर जो है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, हाईवे डिवीज़न और इनके साथ साथ ज़िला कौंसल, म्यूनसिपल कमेटी, लोकल गवर्नमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट में घपला करने का इंकशाफ है। और इनमें हाफिज़ मुमताज़ अहमद ने अपने हल्के में 268 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाईं, जबकि इसके साथ साथ साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो ने अपने हल्के में 151 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाईं, जबकि होम इकनॉमिक्स कॉलेज की तमीर, बुरेवाला क्रिकेट ग्राउंड, रीजनल ब्लड सेंटर की तमीर में घपलों का इल्ज़ाम है। और इसके साथ ही साबिक MPA मोहम्मद लतीफ़ नज़र ने अपने हल्के में 123 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाईं, जबकि मोहम्मद लतीफ़ नज़र ने एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक तमाम तरक्याती स्कीमों के ठेके जो हैं वो मनपसंद अफराद और अपने फ्रंटमैनों को दिए, जबकि लतीफ़ नज़र ने जो ठेके मार्केट रेट से ज़्यादा कीमत पर दिए हैं और उन तमाम तरक्याती स्कीमों में इस्तेमाल होने वाला मटीरियल भी नाक़िस होने का इंकशाफ हुआ है। जबकि इसके साथ साथ ये कहा गया कि लतीफ़ नज़र ने तमाम स्कीमों के जो पैसे हैं वो तो हड़प कर लिए मगर मनसूबे ताल नामुकम्मल हैं। और इन्हीं के साथ साबिक MPA मलिक उमर फ़ारूक ने अपने हल्के में 197 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाईं, जबकि मलिक उमर फ़ारूक ने ठेके जो हैं वो अपने मनपसंद अफराद को देकर करोड़ों रुपए कमीशन वसूल किया। और इन्हीं के साथ साबिक MPA शकील शाहिद ने अपने हल्के में 170 तरक्याती स्कीमें मंजूर करवाईं, जबकि शकील शाहिद ने भी अपने तमाम स्कीमों के पैसे जो हैं वो हड़प कर लिए हैं, मगर उनमें भी बेशतर स्कीमें ताहाल नामुकम्मल है। और इस हवाले से साबिक सूबाई वजीर हाफिज़ मुमताज़ अहमद और साबिक MPA लतीफ़ नज़र को 4 अप्रैल को तलब किया गया है, जबकि साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरो और साबिक MPA मलिक उमर फ़ारूक शकील शाहिद को जो है 3 अप्रैल को एंटी करप्शन ने तलब किया है। 3 अप्रैल को तलब किया है। बहुत शुक्रिया शबीर। आगे बढ़े और आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का कोट लखपत जेल का दौरा, कैदियों के लिए सहूलियात, किचन और बैरकों में सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने 7 कैदियों की रिहाई का हुक्म भी दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जेल में हस्पतालों का भी दौरा किया, कैदियों से जेल में दी गई सहूलियत के बारे में भी पूछा है। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। बताने का मुदस्सिर। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज तनवीर अकबर ने कोट लखपत जेल और कैंप जेल का दौरा किया। दोनों जेलों से मामूली जराइम में मुलव्वस 31 कैदियों को रिहा किया। सुप्रीडेंट जेल एजाज अस्कर भी उनकी हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कोट लखपत जेल से 7 कैदियों को रिहा किया, जबकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कैंप जेल से मामूली जराइम में मुलव्वस 25 कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जेल के किचन, बैरकों का दौरा किया और कैदियों को दिए जाने वाले खाने का भी जो है वो जायजा लिया और खासतौर पर जो सहरी और इफ्तारी के वक्त खाना दिया जाता है उसको जो है उनके मेयार को भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने चेक किया। और बैरकों के दौरे के दौरान कैदियों के बारे में कैदियों से पूछताछ की और सहूलत के बारे में भी कैदियों से जो है वो दरियाफ्त किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जेल के अस्पताल का भी दौरा किया, बीमार कैदियों की इयादत की और बीमार कैदियों से जेल में दी गई मेडिकल और सेहत की सहूलतों के बारे में भी पूछताछ की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने दोनों सुप्रीडेंट जेल को जेल के अंदर जो सफाई के इंतजाम हैं मजीद बेहतर बनाने की हिदायत भी जारी की। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर इस तफसील। मेयो अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। सिर्फ एक था कि इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं मकासद को आगे लेकर चलना। हर डॉक्टर, हर नर्स, हर पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल में काम करने वाले जो हमारे मुलाजिमीन हैं, चाहे वो प्रोफेसर से लेकर दर्जा चहारम तक मुलाजिमीन हैं, चाहे वो प्रोफेसर से लेकर
दर्जा चहारम तक है, सबके हकूक़ की आवाज़ उठाना। अब उसके लिए हमने 48 घंटे का टाइम दिया था पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रमज़ान को मद्देनज़र रखते हुए, गरीब मरीज़ों के इलाज को मद्देनज़र रखते हुए हमने उसको 2 दिन और बढ़ाया कि शायद इनको शर्म आ जाए, शायद ये अपनी गलती का जो है वो ख्याल करें और इसको चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। जो माशी साल की हम बात करें, आज भी, आज की तारीख तक भी सिर्फ पंजाब में 1000 से ज़्यादा डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी पिछले 2 से 3 माह तक से तनख्वाह नहीं आई। इस महंगाई के आलम में जहाँ पे आपको अगर यकम को भी तनख्वाह मिल जाए तो 20 तारीख तक आपके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। जो हमारी तनख्वाहें हो गई, जो पहले $1000 के बराबर थी, आज $400-500 के ऊपर आ गई है। तो वहाँ पे भी अगर आप किसी को 2-3 महीने तक तनख्वाह नहीं देंगे तो यहाँ तो वो बेचारा खुदकुशी पे मजबूर हो जाएगा या हालात की सितम ज़रीफ़ी उसकी जान ले लेगी। तो इसके ऊपर हम बड़ा वाज़े हैं कि अब आज जिस तरह हमने पहले कहा था कि मरहलावार बढ़ाएंगे, आज मेयो, लेडी एचिसन और मेयो अस्पताल के साथ मतलब कि जितने भी छोटे छोटे अस्पताल हैं उनकी आउटडोर सर्विसेज कल से बंद हो रही हैं। 48 घंटे का मज़ीद टाइम देते हैं। अगर इसके बाद भी इनको होश के नाखून ना लिए तो पीर से हम दूसरे अस्पतालों में, लाहौर के बाद पंजाब में और पंजाब के बाद पूरे पाकिस्तान की पहले आउटडोर सर्विसेज बंद होंगी, उसके बाद हम एमरजेंसी और इंडोर सर्विसेज की तरफ भी ज़रूर जाएंगे। मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर सलमान नसीब से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएंगे। बस जी 1 मिनट में हम ये देख रहे हैं कि अस्पतालों को चलाने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अस्पतालों में इस वक्त अद्वियात नहीं है, डॉक्टरों की तनख्वाहें बंद हैं, पैरामेडिक्स, नर्सिस मुश्किलात का शिकार हैं। MTI के ऊपर जो कार्रवाई शुरू की जा रही है, हम उसके ऊपर वार्निंग देते हैं कि इसको फिलफौर बंद किया जाए। मुल्क भर में लॉयर्स प्रोटेक्शन बिल बना दिया गया है कि किसी भी वकील के ऊपर कहीं भी हमला होगा तो उसके ऊपर दहशत गर्दी की जो दफ़ा लगेगी। लेकिन डॉक्टर्स जो इंतहाई मुश्किल औकात में काम करते हैं, इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं, अस्पतालों की प्रोटेक्शन का बिल अभी तक नहीं बना। डॉक्टरों के KPIs के बिल, HP इंडेक्सेशन और तनख्वाहें इस वक्त इस हद तक कम है कि वो अपने चूल्हे नहीं चला पा रहे, इसके बावजूद उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। तो हम ये मुतालबा करते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद की मुलाकात हुई है। पंजाब में रोड्स की तामीर और मुरम्मत जबकि साथ ही साथ बहाली के प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया है। आवाम की सहूलत के लिए सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मंसूबे की बरवक्त तकमील पर इत्तफाक भी किया गया है, जबकि मोटरवेज पर ओवर चार्जिंग रोकने के लिए NHA स्टाफ को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के हदूद इख्तियारात देने का फैसला है। हाईवे और मोटरवेज पर माल बरदार गाड़ियों के लिए एक्सेल लोड कंट्रोल के लिए ज़रूरी इक़दामात पर इत्तफाक किया गया है। आपको अहम खबर से आगाह किया जा रहा है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद की मुलाकात हुई है। पंजाब में रोड्स की तामीर और मुरम्मत और बहाली के प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया है। आवाम की सहूलत के लिए सड़कों की तामीर और मुरम्मत के मनसूबे की बरवक्त तकमील पर इत्तफाक, मोटरवेज पर ओवरचार्जिंग रोकने के लिए NHA स्टाफ को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के महदूद इख्तियारात देने का फैसला किया गया है। हाईवे और मोटरवेज पर माल बरदार गाड़ियों के लिए एक्सेल लोड कंट्रोल के लिए ज़रूरी इक़दामात पर इत्तफाक किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वफाकी वज़ीर मवासलात असद महमूद की मुलाकात के हवाले से पंजाब में रोड्स की तामीर, मुरम्मत और बहाली के नोट प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल किया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डॉलर की कदर बढ़ने और ख़ाम माल ना मिलने पर होंडा कंपनी ने एक बार फिर मोटरसाइकिलें महंगी कर दी हैं। होंडा की मुख्तलिफ मॉडल की मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5 से 15,000 रुपये का इजाफा हो गया है। CD70 CC 5,000 रुपये महंगी, कीमत 1,49,900 रुपये हो गई है। CD ड्रीम 70 CC 5,400 रुपये महंगी कर दी गई है, कीमत 1,60,900 रुपये हो गई है। नई कीमतों का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। अब्दुल कादिर से मज़ीद जानेंगे, बताएं कि अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर आदम इस्तेहकाम का शिकार है और खाम माल की दरामद के मसाइल की वजह से मोटरसाइकिल साज कंपनियों को जो है मुश्किलात का सामना है। और यही वजह है कि एक बार फिर होंडा कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमत में 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए का इजाफा कर दिया। CD70 CC मोटरसाइकिल 5,000 रुपए महंगी की गई और नई कीमत 1,49,900 रुपए कर दी गई। इसी तरह CD ड्रीम 70 CC के दाम जो है 5,400 रुपए तक बढ़ा दिए गए और नई कीमत 1,60,900 रुपए कर दी गई है। प्राइडर 100 CC मोटरसाइकिल की कीमत 7400 रुपए बढ़ाई गई है और कीमत 1,97,900 रुपए कर दी गई है। CD 125 CC 8,000 रुपए महंगा करके 2,22,900 रुपए। इसी तरह CD 125F की कीमत में 15,000 रुपए का इजाफा किया गया।
65,900 रुपए नई कीमत की गई है, जबकि 150 सीसी CB 150F की कीमत 15,000 रुपए इजाफे के बाद 4,51,900 रुपए कर दी गई। और इसी तरह CB 150F जो स्पेशल एडिशन है सिल्वर कलर का, उसकी कीमत में भी 15,000 रुपए का इजाफा किया गया और इसकी कीमत 4,62,900 रुपए कर दी गई है। कंपनी की जानिब से मोटरसाइकिल डीलर्स को नई कीमतों के मुतालिक जो है वो आगाह कर दिया गया और नई कीमतों का इतला 1 अप्रैल 2023 से नाफिजुल अमल होगा। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि मोटरसाइकिल की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कंपनी की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि डॉलर की कीमत मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार है और साथ ही साथ खाम माल की दरामद जो है वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से पैदावारी लागत बढ़ रही है और कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। होंडा के मुख्तलिफ मॉडल की मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर इस तफसील का। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास बीबी पाक दामन के मज़ार की तौसीह मनसूबे पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि मज़ार बीबी पाक दामन के तौसीह प्रोजेक्ट का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। मोहसिन नकवी का मज़ार बीबी पाक दामन के तौसीह प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मोहसिन नकवी कहते हैं तौसीही प्रोजेक्ट के तकमील से ज़ायरीन के लिए सहूलतों में इजाफा होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। इस इजलास में बीबी पाक दामन के मज़ार के तौसीही मनसूबे पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया गया है। निगरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग में ये भी बताया गया है कि मज़ार बीबी पाक दामन के तौसीह प्रोजेक्ट का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है। टैक्सेस ड्यूटीज़ की वसूली के लिए स्टेट बैंक और नेशनल बैंक के औकात में इजाफा। स्टेट बैंक और नेशनल बैंक की ब्रांचेस आज शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि स्टेट बैंक ने इस मुतालिक शेड्यूल जारी कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक की जानिब से नए क़ातिकार अभी जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक नेशनल बैंक और स्टेट बैंक की तमाम ब्रांचेज आज शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, जो कि पहले 2 बजे तक खुलनी थी। जिसकी वजह ये बयान की जा रही है कि तिमाही टैक्सेस और ड्यूटीज़ जो कि लोग अदा करना चाहते हैं उनकी आसानी के लिए ये फैसला किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकें और तिमाही टैक्सेस और ड्यूटीज़ की अदायगी कर सकें, जिसके लिए गुज़श्ता रोज़ भी 2 घंटे औकात-ए-कार में इजाफा किया गया था। ताहम आज इस औकात-ए-कार को मज़ीद बढ़ा के 6 बजे तक कर दिया गया और शाम 6 बजे तक नेशनल बैंक और स्टेट बैंक की तमाम मुतल्लिका ब्रांचेज खुली रहेंगी और वहाँ पर तिमाही टैक्सेस और ड्यूटीज़ की वसूली की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब कबीना का 12वां इजलास आज तलब कर लिया है। सूबाई कबीना के इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी किया जाएगा। इजलास आज ऐवान वज़ीर आला के कमेटी रूम में मुनक्किद होगा, जबकि सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जबकि मुतल्लिका हुकाम भी इस इजलास का हिस्सा होंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का 12वां इजलास आज तलब कर लिया है। सूबाई काबीना के इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी किया है। इजलास आज ऐवान वज़ीर आला के कमेटी रूम में मुनक्किद होगा। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शरीक होंगे। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के हवाले से इजलास। वफाकी मोहतसिब एजाज़ अहमद कुरैशी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात और मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। इजलास के शुरका ने जेलों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के हवाले से इजलास हुआ है। इस इजलास में वफाकी मोहतसिब एजाज़ अहमद कुरैशी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास के शुरका ने जेलों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के हवाले से इजलास। वफाकी मोहतसिब एजाज़ अहमद कुरैशी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात और मुतल्लिका अफसरान की शिरकत। इजलास के शुरका ने जेलों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहा है। आपको बता रहे हैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत जेल इस्लाहात के हवाले से ये इजलास हुआ है। इस इजलास में मोहतसिब एजाज़ अहमद कुरैशी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG जेल खाना जात और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन ने हमें ज्वाइन किया है, हमसे मज़ीद जानेंगे। जी हसन। बिल्कुल, सुबह में जेल इस्लाहात का जायजा लेने के लिए सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ, जिसमें वफाकी मोहतसिब एजाज़ अहमद कुरैशी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अहमद रजा सरवर, IG जेल खाना जात फारूक नज़ीर और मुतल्लिका अफसरान शरीक हुए। वफाकी मोहतसिब का कहना था कि पंजाब में जेलों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दाम काबिल तफरीह है। सुप्रीम कोर्ट की हदायत की रोशनी में तमाम सूबों में जेल रिफॉर्म का अमल जारी है।
चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि जेलों की बेहतरी सूबाई हुकूमत की तफ्तीशात में शामिल है और कैदियों के लिए बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। IG पंजाब ने भी IG जेलखाना जात ने भी इजलास में तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि नशे के आदी कैदियों की बहाली के लिए 17 जेलों में 20 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल जून तक मुकम्मल हो जाएंगे और 10 जून में 170 करोड़ रुपए की लागत से कसीर मंजिला अजाफी बैरक्स तामीर किए गए हैं। इन वीडियो लिंक ट्रायल के लिए 9 सेंट्रल जेलों को सदाद दहशत गर्दी की अदालतों से मुंसलिक किया गया है। जी बहुत शुक्रिया हसन रजा इस तफसील का। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कस्टम्स हुकाम ने एक हफ्ते में 6 से 7 गाड़ियां कब्जे में ले ली हैं। गाड़ियां ज़्यादातर डुप्लीकेट नंबर्स पर चलाई जा रही हैं। एक हफ्ते के दौरान जब्त की गई गाड़ियों की कीमत 200 मिलियन है, जबकि जब्त की गई गाड़ियों में आपको बताएं कि प्राडो, लेक्सिस और दीगर गाड़ियां भी शामिल हैं। इसी पर बात करेंगे राहिल अली से। जी राहिल अली, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? गाड़ियों की बढ़ती कीमतों के बाद ये देखा गया कि शहर लाहौर में 9 कस्टम पेड गाड़ियों का इस्तेमाल भी बढ़ गया और ये वजह के कस्टम ने उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज कर दी है। पिछले एक हफ्ते के दौरान कस्टम इंटेलिजेंस और कस्टम एडिशनल में उसमें तौर पर 6 से ज्यादा जो है वो लग्जरी गाड़ियां जो मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो चलाई जा रही थी, उनको जब्त किया, जिनकी मांगे 200 मिलियन से ज्यादा बताई जा रही है। ये गाड़ियां जो है ये जाली नंबर प्लेट या जाली दस्तावेजात पर जो है वो चलाई जा रही थी। कस्टम काम पर कहना ये है कि जैसे जैसे गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है वैसे ही जो है वो नौ कस्टम प्लेट गाड़ियों का इस्तेमाल भी बढ़ गया, क्योंकि ये मार्केट की निस्बत काफी सस्ती जो है वो दस्तियाब होती है। ताहम कस्टम काम ने अपने इंटेलिजेंस भी जो है वो तेज कर दी है, खुफिया खिलाफ ऐसी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां भी तेज कर दी है। और यही वजह है कि एक हफ्ते के दौरान मर्सिडीज, प्राडो और दीगर लग्जरी गाड़ियां जो है वो कब्जे में ली गई। बहुत शुक्रिया राहिल। आगे बढ़कर बात करें वाल्टन, नवाज शरीफ कॉलोनी और मलहक्का इलाके डूबने का मामला। 2 इदारों की सर्द जंग के सबब वाल्टन के इलाकों से निकासी आब का मामला हल ना हो सका। निकासी आब के लिए अंग्रेज़ दौर की प्ली तोड़ने पर वासा और महकमा रेलवे के दरमियान डेडलॉक। वासा की हिदायत पर डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे को मुरासला लिखा गया था। मुरासले में ADA ड्रेन और प्ली नवाज शरीफ कॉलोनी वाल्टन को खुला करने की इस्तदा की गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबिदीन। बताएगा ज़ैन। हर साल मानसून की बारिशों में डूबने वाले वाल्टन और नवाज शरीफ कॉलोनी के इलाकों के लिए प्लान बनाया गया था कि यहाँ नया सीवरेज सिस्टम बिछाने के साथ साथ महकमा रेलवे की जो क्रॉसिंग की पुली है इसकी भी तोसी की जाए ताकि निकासी आब के सिस्टम में बेहतरी आ सके। वासा ने दीगर मंसूबों की मारिद इस मंसूबे की प्लानिंग करके भी इसको अधूरा छोड़ दिया है। ये निकासी आब के लिए अंग्रेज दौर की पुली तोड़ने पर वासा और महकमा रेलवे के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। वासा इंतजामिया ने डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे को फरवरी 2021 में ये मरासला लिखा, तो इस मरासले में ADA ड्रेन और पुली नवाज शरीफ कॉलोनी वाल्टन को खुला करने की इस्तदा की थी। ये रेलवे लाइन पर जो पुली है ये 1857 में ट्रेन गुजारने के लिए बनाई गई थी, मगर 150 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद इस पुली की तोसी ना हो सकी। महकमा रेलवे ने पुली की तोसी करने पर एतराजात उठा दिए हैं और महकमा रेलवे की जानिब से फंड्स देने और वासा को काम करने की हदायत की गई, लेकिन 2 साल बाद भी जो फंड्स का बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन इस अपडेट्स का। लेस्को के सब डिवीजन्स में मीटर्स नायाब हो गए हैं। लेस्को इंतजामिया के दावों के बरक्स मीटर्स की शदीद किल्लत बरकरार है। सार्फिन न्यू कनेक्शंस लगवाने और ख़राब मीटर्स तब्दील करवाने के लिए ख्वार होने लगे हैं। लेस्को फील्ड अफसरान की जानिब से ख़राब मीटर्स वाले सार्फिन 3 माह से एवरेज बिल चार्ज किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे फ़हद अमीन से। जी फ़हद, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, लेस्को इंतजामिया के मुख्तलिफ दावों के बरक्स मीटर की जो है वो शदीद किल्लत बरकरार है। लेस्को की सब डिवीजन में इस वक्त सिंगल और 3 फेज मीटर जो है वो नायाब हो चुके हैं। सार्फिन न्यू कनेक्शन लगवाने और खराब मीटर तब्दील करवाने के लिए ख्वार हो गए हैं। जरा के मुताबिक लेस्को फील्ड अफसरान की जानिब से खराब मीटर को 3 माह से एवरेज बिल जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं। मीटर खराब होने पर सार्फ को एवरेज बिल, ब्रेकअप यूनिट और फिर डिटेक्शन बिल भी चार्ज कर दिया जाता है। ताहम जो है वो खराब मीटर की तब्दीली न होने की वजह से सार्फी को कई गुना इजाफी बिल जो है वो जमा करवाने पड़ रहे हैं। लेस्को में मजमूई तौर पर जो है वो 1 लाख से ज्यादा नए मीटर की तनसीब और खराब मीटर की तब्दीली इंतवा में है। मीटर के असूल के लिए सार्फी लेस्को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर है। लेस्को इंतजामिया की जानिब से रवा माह 20,000 जो है वो मीटर सब डिवीजन को दिए गए। इस हवाले से लेस्को काम का कहना है कि जल्द ही मीटर की कमी को जो है वो दूर कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया फहद।
اساتذہ کی ترقیوں کے لیے 4 دن میں ورکنگ پیپر بھجوانے کی ہدایت۔ پروموشن کیسز کے ورکنگ پیپرز 3 اپریل تک بھجوانے کی ڈیڈ لائن۔ ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ مقررہ وقت میں ورکنگ پیپر نہ بھجوانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اسی پر بات کریں گے عاطف پرویز سے، بتائیں گا عاطف۔ جی بالکل، ڈی کالجز پنجاب کالجز کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر جو اساتذہ کی پروموشن کے ورکنگ پیپر ہیں وہ ڈی پی آئی کو بھجوائے جائیں، اور اس کے لیے 4 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ 3 اپریل تک یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر یہ کاغذات جو ہیں ورکنگ پیپر بھجوائے جائیں، جس میں گریڈ کے اساتذہ کی پروموشن، یہ مزید پروموشن کے جو ورکنگ پیپر لیٹ ہوتے ہیں تو 6 ماہ تک پروموشن ہے یہ التوا میں پڑ سکتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ڈائریکٹر جو ہیں یہ ورکنگ پیپر نہیں بھجوائیں گے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جی شکریہ عاطف۔ حکومتوں کی غیر سنجیدگی، گلبرگ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ شروع نہ ہو سکا۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ نے فائلز میں طویل عرصے تک بند رہنے کا ریکارڈ بنا دیا ہے۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کا اعلان ہوئے 7 سال مکمل ہو گئے۔ ایل ڈی کی جانب سے ابھی تک 2 ارب 15 کروڑ 87 لاکھ روپے ادا کیے جا چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے زین العابدین سے۔ جی زین العابدین، کیا تفصیلات ہیں؟ شہر لاہور میں ٹریفک انجینئرنگ کا یہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبہ میگا پروجیکٹ تھا جس نے ابھی تک فائلوں میں طویل عرصہ تک بند رہنے کا ریکارڈ بنا لیا ہے۔ حکومتوں کی جانب سے ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ پر مسلسل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ منصوبہ شروع نہیں ہو سکا۔ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کا اعلان کیے ہوئے 7 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ مارچ 2016 میں اس منصوبے کا اعلان سابق پنجاب حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا، لیکن ابھی تک اس منصوبے پر تعمیراتی کام شروع نہ ہو سکے۔ تحقیقات میں یہ چیز سامنے آئی کہ پی ٹی آئی حکومت کا پنجاب میں 4 سال 7 ماہ کا دور اقتدار بھی منصوبوں کو فائلوں میں گماتا رہا۔ بزدار حکومت کے اقتدار اور پرویز الہی کی حکومت نے منصوبے کی بار بار منظوری دی، لیکن سیاسی صورتحال میں تبدیلیوں کے سبب ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پر حکومت کی عدم توجہ رہی۔ پی ٹی آئی حکومت نے 3 مرتبہ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کی منظوری دی۔ شہباز دور حکومت میں ایل او ایس نالے کی دوران ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منظور کیا گیا تھا اور اس کی اراضی بھی ایکوائر کر لی گئی، تاہم 2018 میں نئی پنجاب حکومت نے اس منصوبے کو بند کر دیا۔ بعد ازاں 2021 میں سردار عثمان بزدار نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب دوبارہ اس منصوبے کی منظوری دی، لیکن تعمیراتی کام پھر نہ شروع ہو سکا۔ کہ شہر لاہور کا موسم خوشگوار، آسمان پر کالی گھٹائیں، مختلف علاقوں میں بارش، تیز ہوا چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ سامیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سامیہ، ویسے تو صبح سے ہی ٹھنڈی ہواؤں کا احساس ہے جو برقرار ہے، محکمہ موسمیات کے کہتے ہیں اس متعلق کب تک یہ احساس برقرار رہے گا؟ جی بالکل، اگر بات کی جائے موسم کی تو شہر لاہور کا جو موسم ہے وہ اس وقت خوشگوار ہو چکا ہے۔ آسمان پر جو ہے وہ کالے بادل چھا چکے ہیں اور ہلکی ہلکی بوندا باندی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج جو موسم ہے وہ اسی طریقے سے خوشگوار رہے گا، بوندا باندی کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے ہی جاری رہے گا۔ رمضان ہے اور آج جمعے کا دن بھی ہے، اور تو یہ روزے دار کے لیے خوشخبری ہے کہ موسم جو ہے وہ آنے والے 3-4 دنوں میں اسی طریقے سے ہی خوشگوار رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو موسم ہے وہ 4 اپریل تک اسی طریقے سے ہی خوشگوار رہنے والا ہے۔ رمضان میں جو درجہ حرارت ہے وہ 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ ابھی اس وقت جو ہوا ہے وہ 14 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے، ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے آج کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا، اور جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے وہ اسی طریقے سے ہی چلتی رہے گی۔ ساتھ صبح بھی ہم نے یہی دیکھا کہ لاہور میں مختلف مقامات پر کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے ہی جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ہم یہی دیکھیں گے۔ رمضان کے جو پہلے 15 دن ہے وہ موسم اسی طریقے سے خوشگوار رہے گا، اور جو گرمی یہاں ہے اس کا باقاعدہ آغاز مئی سے ہوگا۔ اگر اسی طرح بات کی جائے فضائی آلودگی کی تو آج لاہور شہر جو ہے وہ فضائی آلودگی کی فہرست میں 6 نمبر پر ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 108 ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں درجہ حرارت میں ہمیں کبھی دیکھنے کو آئی ہے وہی فضائی آلودگی میں بھی آج ہمیں کبھی ہی دیکھنے کو آئی ہے۔ اگر اسی طرح بات کریں شہر کے مختلف علاقوں کی تو جوہر ٹاؤن کا 91 ریکارڈ کیا گیا ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس گلبرگ کا 94 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگر بات کی جائے بارش کے حوالے سے تو آج جو سب سے زیادہ بارش جو ہوئی ہے وہ کالا تالاب میں، کچا تالاب میں ہوئی ہے 4 ملی میٹر۔ اگر اسی طریقے سے ہم بات کریں گلبرگ کی تو اس میں 3 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ تو بارش بہت شکریہ سامیہ سعید، آپ ہمیں موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی۔
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने मुफ्त आटे की तकसीम में लाहौर को नंबर 1 करार दे दिया है। कहते हैं गिरा फरोशी को कम करने के लिए इंतजामिया रिलीफ फ्राहम करे। फ्री आटा फ्राहमी बड़ा टास्क है। कामयाबी पर अफसरान की तारीफ करता हूँ। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इमरान अकबर कमिश्नर लाहौर के हमराही मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। जी इमरान। जी बिल्कुल, मामला है आटे की तकसीम का और शहर लाहौर जो है वो इस वक्त नंबर 1 जा रहा है। इंतज़ामिया सारी जो है वो आटे की तकसीम के ऊपर है। कन्फ्यूजन क्यों है? कमिश्नर लाहौर डिवीज़न हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। मैंने जब भी विजिट्स किए हैं सेंटर्स पे, और ये बताऊँ मैं सरप्राइज विजिट्स करता हूँ क्या, ताकि आपको रियल पिक्चर आपको पता चले। और मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यूज़ किए हैं, मुझे वो 10 मिनट कहते हैं। अब वो 10 मिनट भी बड़ा अजीब सी बात लगती है। तो अगर हम 3-4 घंटे और 10 मिनट की एवरेज ले लें तो मेरा ख्याल है आधा से पौना घंटा लगता होगा, मैक्सिमम 1 घंटा लगता होगा। अब वो 1 घंटे के अंदर अगर उसको हमारे जो भी हमारे पास आते हैं लोग, डिजर्विंग जो लोग होते हैं, अगर उनको हम आटा प्रोवाइड कर रहे हैं तो, और इतनी लंबी लॉन्ग क्यूज़ है, आपको पता है लाहौर में इस वक्त तक कल रात तक जो है वो 34 लाख आटा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और ये पूरे लाहौर डिवीज़न का एजाज़ है कि पूरे पंजाब में सबसे आगे है। और सेकेंडली ये कि आज मैंने तमाम फील्ड फॉर्मेशंस के साथ, पूरे डिवीज़न के ऑफिसर्स के साथ, सेंटर इंचार्जेस के साथ खुद मीटिंग की है। और उसका मकसद ये था कि अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। आने वाले दिनों में जितना ज़्यादा हम अच्छे तरीके से लोगों को आटा प्रोवाइड कर सके वो करें। बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर इंचार्जेस उनको भी बुलाया है और उनसे कहा है कि जो आपके पास आते हैं मैक्सिमम 48 घंटों के अंदर उनका डाटा एंटर करके उनको हाँ या ना में कोई जवाब दे दें, ताकि हम इस चीज़ को लिंगर ऑन ना करें। अब जो रमज़ान का टाइम गुजर रहा है और उसी तरह हम लोगों को कैटर कर रहे हैं, अपने लेसन से खुद लर्न भी कर रहे हैं कि हमसे क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। और बहुत हमने जो फर्स्ट डे स्टेप लिया था कि हमने फर्स्ट डे ही अपने बहुत सारे सेंटर्स जो है 24/7 कर दिए, यानी कि रात 10 बजे से 2 बजे तक। तो बहुत सारे लोग जो है वो रात को आते हैं, रात को चूँकि मौसम अच्छा होता है तो उसमें वो अपना आटा ले जाते हैं। बिल्कुल जी, आपने कमिश्नर लाहौर की डिटेल तफसीली गुफ्तगू सुनी कि आटा जो है उसकी तकसीम जारी है। लाहौर जो है वो इस वक्त पंजाब में नंबर 1 है और आगे भी कोशिश जारी रहेगी। आज के दिन चूँकि जुम्मा है और आज के दिन आटा जो सेंटर्स हैं वो बंद हैं और कल से दोबारा जो है नई पावर के साथ, नए जज्बे के साथ आज एक बड़ी मीटिंग की गई है। तमाम अफसरान को दोबारा से हल्ला शेरी दी गई है, उनको हिजानी कैफियत से निकाला गया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे खड़े हैं, कन्फ्यूजन को ख़त्म करें। सेंटर्स में जो है तमाम शहरियों को रिलीफ देने के लिए उनका साथ खड़े हों, उनको आटा फराहम करवाएं और ग्राम फरोशी और इन्फ्लेशन को कम करने के लिए भी मजिस्ट्रेट्स अपने छापों को बरकरार रखें और रोजाना की बुनियाद पर कमिश्नर। ठीक है, कमिश्नर लाहौर के साथ इमरान अकबर मौजूद थे और तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।